السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، اور قیامت تک آنے والے مسلمین اور مومنین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم و عمل، دعوت اور صبر جو سورۃ العصر میں بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے علم و عمل اور تعلیم جاری رکھنے کا فن۔ دراصل العلم المستمر ایک آرگنائزیشن ہے، ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، اور اس کے ذمہ داروں نے مجھ سے رجوع کیا اور کہا کہ الحمدللہ ہم کتب حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث کو پھیلانے کا، نشر و اشاعت کرنے کا ہمیں والہانہ شوق ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن سے محبت، حدیث سے محبت، صحابہ کے زندگیوں سے محبت، اور علم و عمل سے محبت ہے، ایمان سے محبت ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ علم عام ہوتا چلا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ پژمردگی آنے لگتی ہے، کچھ انڈسپلین آنے لگتا ہے، کچھ لیزینس، سستی طاری ہونے لگتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پہلی کلاس میں زیادہ تعداد میں آتے ہیں، کبھی تعداد کم ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات وہ جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے۔ تو آپ ایسا کوئی موٹیویشنل ایک بیان، ایک ٹاک، ایک ایسا بیان دیجئے کہ قرآن اور صحیح احادیث میں ہمیں علم و عمل پر کیسا ابھارا گیا، اور وہ ہے کنٹینیوس علم و عمل پر جو ابھارا گیا ہے اس پر ہمیں توجہ دلائیں، اور کس طریقے سے اپنے ٹائم کو بانٹیں کہ جیسے کہ علماء کرام اپنے ٹائم کو بانٹتے ہیں اور پوری زندگی لگا دیتے ہیں، تو ہم کو بھی اس راستے پر چلنا ہے۔ تو لہذا ایسا کوئی بیان دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہمارے طلبہ کو علم و عمل جاری رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ نظریہ، یہ سوچ، اور یہ صرف اسی ادارے کے لیے نہیں بلکہ آج کے دور میں آن لائن پلیٹ فارم، اکیڈمک انسٹیٹیوٹ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن تو کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ اچانک جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر وہ ادارے کمزور پڑ جاتے ہیں یا افراد کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کے لیے ضرورت ہے کہ اس ٹائپ کے بیانات ہوتے جائیں۔ تو آئیے ہم ٹاپک پر چلتے ہیں کہ تعلیم کو جاری رکھنے کا فن، علم و عمل کو جاری رکھنے کا فن کے لیے ہم کیا اچھے اچھے وہ باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتے ہیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے تاکہ جذبہ ہمارا ٹھنڈا نہ ہو۔ سب سے پہلے تو سورہ عصر کا پیغام دیکھیے آپ۔ سورہ عصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پورے کے پورے انسان خسارے میں ہے۔ آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیانات بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچانا ہے تو اس کو چار کام کرنا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یہ چار کام کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو یہ چار کام کرتے رہیں گے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی علم۔ علماء کرام نے کہا علم کے بغیر ایمان نہیں آتا، تو علم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل پر ابھارا گیا ہے، پر وتواصوا بالحق، یہاں پر اصلاح اور دعوت کے کام پر ابھارا گیا ہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، کیونکہ جب آپ دعوتی کام کریں گے، دینی کام کریں گے،
تو شیطان جو ہے خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، اور شیطانی لوگ بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، شیاطین الانس والجن خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ وہ آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کریں گے، تکلیفیں ڈال سکتے ہیں، تو ایسے وقت پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، ایک دوسرے کو سہارا دے، ہمت دے، ایک دائی دوسرے دائی کو، ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو، کہ نہیں نہیں ہم کو علم و عمل کا یہ سفر جاری رکھنا ہے، اس طریقے سے۔ تو یہ بیان بھی جو ہے دراصل وتواصوا بالحق ہے، وتواصوا بالصبر ہے، یہاں پر آپ کو استقامت پر ابھارا جا رہا ہے، تو گویا کہ اس بیان بھی وتواصوا بالصبر کی ایک کڑی ہے۔ تو اس سورے کا پیغام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ علم و عمل، دعوت اور صبر یہ سب جاری رکھنے کا کام ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کیجئے آپ، جہاں 40 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے تو پہلی وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو ختم نہیں ہو گیا، بلکہ 23 سال تک چلتا رہا، چلتا رہا۔ 23 سال میں کئی مہینے آ گئے، کئی موسم آ گئے، موسم گرما، موسم سرما، سردی، گرمی، سفر، جنگیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کا ماحول، پیاس کا ماحول، خوف کا ماحول، امن کا ماحول، اور بوڑھے ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم و عمل کے سفر کے ساتھ آپ بڑھاپے تک، یہاں تک کہ موت، یعنی کہ انتقال سے چند ایام پہلے، چند مہینے پہلے تک بھی وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ کیا پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے لیے؟ کیا پیغام ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ میں 25 سال پہلے، جب میں 25 سال کا عمر کا تھا، جب میرا گریجویشن ختم ہوا 23 سال کی عمر میں، تب میں پڑھا کرتا تھا، تب میں کتابیں اٹھائی تھی، اس کے بعد سے جب سے جاب جوائن کیا ہوں، جب سے بزنس کرنے لگا ہوں، نہ میں قلم اٹھاتا ہوں، نہ میں نوٹ بک اٹھاتا ہوں، نہ میں بک اٹھاتا ہوں۔ تو یہ امت مسلمہ آج جو ہے کتابوں سے دور، قلم سے دور، پڑھائی سے دور، علم سے دور، اتنی جب دوری ہوگی تو ترقی کیسے کرے گی؟ نہ دنیا میں پڑھ رہے ہیں ہم، نہ دین پڑھ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے، آج آپ دیکھ لیجئے، غور کر کے دیکھیے ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، یعنی کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، صحابہ کو سکھا رہے ہیں، اور صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ زیادہ فرق نہیں، آپ دیکھیں 1 سال 2 سال چھوٹے بس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر کے صحابہ، چھوٹی عمر کے صحابہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی عمر کے، درمیانی عمر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص چھوٹے، عمر بن عاص بڑی عمر کے۔ یعنی عمر ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے کہ کیسے علم کے لگے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کاتبین وحی میں شمار ہوتا ہے۔ تو میں یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ویسے نہیں تھی جیسا کہ آج ہم نے وتیرہ بنا لیا، کہ جب اسکول میں ہوتے ہیں تو فس فس آتے ہیں، اور کالج میں بھی جاتے ہیں تو فس، جیسے ہی کالج ختم ہوا تو کتابوں کو پلٹ کے نہیں دیکھتے، قلم کو پلٹ کے نہیں دیکھتے، بس کمانا ہے، جاب کرنا ہے، پڑھنا، یعنی کہ پڑھائی سے دور۔ قرآن مجید کب پڑھے ہیں؟ حدیث کی کتابیں کب پڑھیں گے؟ دین اور دنیا سے دونوں کی تعلیم پڑھتے رہنا۔ آپ دیکھیں جو قومیں ترقی کر رہے ہیں آج کے دور میں، جاپان، چائنا، یو ایس، یورپ کے لوگ ترقی کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ لوگ رات دن پڑھتے ہیں، آپ معلوم ہے کہ فلائٹ میں بھی آپ دیکھیں پڑھتے رہتے ہیں، ایئرپورٹ پہ دیکھیں پڑھتے رہتے، ہمارے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر کیا کھانے کے لیے کیا ہے؟ ایئرپورٹ پہ کھانے کے لیے فلاں اچھا ملتا، فلاں جنجر چکن اچھا ملتا، ڈونٹس اچھے ملتے، اور کھاتے ہیں پھر اس کا ٹوائلٹ کو جاتے ہیں، کھاتے ہیں ٹوائلٹ کو جاتے ہیں، بس اسی میں ٹائم ختم، ایئرپورٹ کا پورا ٹائم ختم۔ اب وہاں پر دیکھیں جو ترقی کرنے والی قومیں ہیں، ان کا کھانا بہت کم ہوتا ہے، تو ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، بار بار کوئی ٹوائلٹ بھی نہیں جا رہے، بار بار کوئی ایسا نہیں کہ نیند آ جا رہی، الرٹ ہے، اور کتنے کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ہزاروں نے لاکھوں کتابیں ڈسپلن پر، صرف ڈسپلن پر،
और जितने बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर सबसे ज्यादा डाउनलोड कौन सी किताबें करते हैं? डिसिप्लिन, अपने टाइम को कैसा बांटना है, टाइम मैनेजमेंट, बिहेवियरल मैनेजमेंट, पीपल्स मैनेजमेंट, हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू हैंडल टाइम, हाउ टू हैंडल वर्क, किस तरीके से बैलेंस करें अपने फैमिली को और अपने बिजनेस को और अपने दोस्त और अहबाब को, और किस तरीके से हेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ तक के अपना मेंटल जो है ना मैनेजमेंट कैसा हो, और मनी मैनेजमेंट कैसा हो, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसी हो। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्किल्स कैसे डेवलप करें। आजकल दुनिया में नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, चैट जीपीटी हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे नए नए टूल्स आ रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करें दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा इन तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। और उसमें से एक क्या? अल्लाह की किताब है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो मुख्तलिफ हदीसों को जमा करने के बाद मजमूई तुरुक से इस तरह की हमें मालूमात मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अरशाद फरमाया कि कुरान और सही हदीस को थामे रहोगे तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको ये यकीन है कि मैं कुरान और हदीस को थामूंगा तो ही जन्नत मिलेगी, दुनिया में मैं गुमराह फिरकों से बचूंगा, तो फिर कहाँ है आपका टाइम टेबल? कहाँ है आपका शेड्यूल? वो आपके टाइम 24 घंटे में वो कौन सा टाइम टेबल है जहां पर आप 1 घंटा, आधा घंटा कुरान मजीद के फहम के लिए और आधा घंटा कुतुब हदीस के लिए दे रहे हैं? आज मेरे टॉपिक का जो लुब्बे लुबाब है वो यही टॉपिक है कि कुरान और हदीस पढ़ने के लिए आप अपना टाइम कैसे निकालें और किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं आज उसका आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पर बैठा हूं। यानी इल्म की अहमियत के लिए मैं बहुत सारे हदीसें आपको बोल सकता हूँ कि जिसने इल्म हासिल किया हो गया कि जन्नत के रास्ते में मन सला का तरीकन यतलुबु फी यल्तमिसु फी इल्मन सहलल्लाहु बि तरीक़ अल जन्ना, कि जो आदमी इल्म हासिल करता है अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इससे पता चल रहा है कि इल्म एक कंटिन्यूअस चीज है। ऐसा नहीं कि 23 साल में पढ़ा था अब मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं, मरते दम तक पढ़ना है, मरते दम तक अमल जारी रखना है। सूर्य इकरा, सूर्य अलक में भी बताया जा रहा है कि इल्म और अमल एक साथ चलेगा, वरना अबू जहल का भी जिक्र है सूर्य अलक के अंदर कि वो इल्म हासिल नहीं किया, अमल भी हासिल नहीं किया, गुमराह हो गया। उसको अबू जहल बोले क्योंकि वो इल्म और अमल में जाहिल था। हमको ऐसा जाहिल नहीं बनना है, हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरह इल्म और अमल का पैकर बनना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा सवाल ये है आज के दर्स में कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक तुम दो चीजों को थामे रहोगे गुमराह नहीं होंगे, तो फिर कहाँ है, वेयर इज योर टाइम टेबल? आपका टाइम टेबल में ये कुरान और हदीस पढ़ने का टाइम टेबल में डिसिप्लिन के तौर पर कहां पर आपने फिक्स किया है? कौन सा टाइम है? क्या वो फजर का टाइम है? क्या वो दोहर का टाइम है? क्या वो असर का टाइम है? मगरिब का टाइम है? इशा का टाइम है? 24 घंटे में थोड़ा तो होना चाहिए। आप कहते हैं मैं वीकेंड में पढ़ूंगा, वीकेंड में पढ़ेंगे तो हफ्ता भर आप नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब कुरान और हदीस हफ्ता भर नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब तो साल में सिर्फ 50 वीकेंड मिलते हैं तो सिर्फ 50 घंटे पढ़ेंगे आप। बहुत कम है ना? तसव्वुर कीजिए, बहुत कम है। इतना पढ़ेंगे, जितना कम पढ़ेंगे उतना जहालत के करीब हो जाएंगे। जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतनी रोशनी ज्यादा, जितनी रोशनी ज्यादा होगी रूम में तो उतना जो अंधेरा दूर होगा, जितनी रोशनी कम होगी अंधेरा अंधेरा करीब आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो हर दिन आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की जिंदगी से हमें पता चलता है कि वो सारे जो काम है इस तरीके से मैनेज करते थे कि इल्म और अमल रोजाना चल रहा है। तो आइए मैं आपको एक टाइम टेबल देता हूं कि जो फजर का टाइम है ना, ये 4 बजे से लेकर ये 8 बजे तक, अगर आप मान लीजिए 7:30 से भी आप अपने ऑफिस के लिए या जॉब के लिए या माए जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 7:30 से अगर खाना बनाना शुरू करते हैं कि बच्चे 9 बजे जाएंगे या 8:30 को जाएंगे, चलो मान लो कि नहीं, बात बच्चे बहुत जल्दी जाते हैं, 7 बजे भी अगर आप लगा लो तो 4 से लेकर 7 बजे का जो टाइम है ना,
अक्सर देखिए टाइम पे ना फोन आता है, ये टाइम पे कोई मिस कॉल भी नहीं आता, ये टाइम पर कोई गड़बड़ भी नहीं होती, ये टाइम पर कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करता। बल्कि अगर आप दोस्त को कहेंगे कल फोन करो तो हो सकता है वो टाइम पे सो भी जाए, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो ये इसको कहते हैं मी टाइम। क्या कहते हैं आज के दौर में इसको? मी टाइम। ये मेरा अपना टाइम, ये मेरा अपना टाइम। मैं क्या कर रहा हूं? ये मी टाइम में अपग्रेड करना है, अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को तरक्की में ले जाना है। क्या करना है? ये टाइम में आपको तहज्जुद की नमाज मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ लीजिए। ये टाइम पर इस्तगफार, वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सहरी के टाइम पर इस्तगफार करने वाले, ये टाइम पे आप इस्तगफार करेंगे, गुनाह धुल जाएंगे, तो जिंदगी से रुकावट खत्म हो जाएंगी। एक फायदा, अज़कार पढ़ सकते हैं आप ये टाइम पर, दुआएं कर सकते हैं आप ये टाइम पर, फजर की नमाज जमात से पढ़ सकते हैं आप, जमात से पढ़ सकते हैं, टाइम पर पढ़ सकते हैं। फिर नमाज के बाद के अज़कार, फिर पूरे जिंदगी में अगर जादू, जिन, नजर बद का अटैक हुआ है, तो ये दुआओं की वजह से आपकी जिंदगी फिर साफ हो जाएगी, नसीब में खुशी आ जाएगी। फजर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिल जाएगी आपको, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह तू मेरी उम्मत में उस टाइम पर बरकत अता फरमा जो सुबह सवेरे उठकर काम करते हैं। इसीलिए साहबा कराम अगर जंगों के लिए, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जब जंगों के लिए भेजते या तिजारत के लिए भेजते तो फजर के बाद भेजते थे। तो फजर के बाद का टाइम अक्सर हम फजर गोल कर देते हैं, तहज्जुद गोल कर देते हैं, अज़कार गोल कर देते हैं। और पेशाब करता है शैतान, और शैतान जो है पेशाब करता है कान में, और वो पेशाब पी कर उठते हैं 7, 7:30 बजे, और इधर से होंठों में से, इधर से थूक निकल रहा है, नाक में से थूक निकल रहा है, कान में से, आंखों में से कीड़ निकल रहा है। 7:30 बजे उठते हैं और जल्दी जल्दी बच्चों को जो है रवाना कर देते हैं। बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी, खुद भी नमाज नहीं पढ़े, घर के अंदर जहां पर अब नमाजें नहीं पढ़ेंगे, इस्तगफार नहीं करेंगे, तो घर के अंदर क्या बरकतें आएंगी? बरकतें नहीं आएंगी। और फिर बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे भी फिर यही कंटिन्यू करेंगे, आने वाला जनरेशन भी फिर यही रास्ते पर जाएगा। अब बाज जगह पर तो बाद बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, हदीस नहीं पढ़ते, बल्कि जाकर वहां पर बाइबल पढ़ लेते हैं मिशनरी स्कूल में, वेदास पढ़ लेते हैं मिशनरी स्कूल में। अब फिर ये बच्चे जो असर में आते हैं तो वहां पर थके मांदे हो, तो उस वक्त पर मौल साहब आते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, बच्चे थक, खेलने के मूड में होते हैं, पढ़ने के मूड में नहीं होते। फ्रेश टाइम आपने दुनिया पढ़ने लगा दी, और जो थका हुआ टाइम था वो असर में आपने दे दिया। फिर मगरिब के बाद फ्रेश हो गए, फिर होमवर्क करा दिया, फिर दुनिया के लिए आपने टाइम दिया। बच्चों के दिमाग में आप ये प्रोग्रामिंग दे रहे हैं कि दुनिया इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम मेरे फ्यूचर की लाठी है, तुम मेरे जो सहारा है, तुम अगर नहीं कमाओगे तो फ्यूचर में हम लोग मर जाएंगे। अल्लाह पे तवक्कुल की कोई तालीम नहीं है यहाँ पर, असबाब पे मुकम्मल भरोसा है यहाँ पर, मादियत के पीछे भाग रहे हैं। ना कोई तवक्कुल का दर्स है, ना कोई ईमानियत का दर्स है, ना सहाबा की जिंदगी पढ़ी है, ना कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा है, ना हदीस सही बुखारी पढ़ी, ना सही मुस्लिम पढ़ी, ना सुनन तिरमिजी, ना सुनन इब्ने माजा, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, कुछ भी नहीं पढ़ी। बुलुगुल मराम नहीं पढ़ी, मिशकात नहीं पढ़ी, फिक्ह के अहम मसले नहीं मालूम, तहारत, सलात, सौम, जक़ात, हज के मसले नहीं मालूम, फिक्हुल इबादात नहीं मालूम, फिक्हुल मामलात नहीं मालूम। बच्चे हो गए जवान, डिग्री में आ गए, उसके बाद बच्चे नाफरमान हो गए। मौल साहब को ऐसी दुआ दो कि मेरा बच्चा एक रात में शेख बिन बाज बन जाए, वलीउल्लाह बन जाए। कैसा होगा मेरे भाई? एक रात में आपको जॉब वाला जाके जॉब पे नहीं रख लेता, एक रात में कोई हेडमास्टर नहीं बन जाता, एक रात में कोई प्रिंसिपल नहीं बन जाता, ना कोई केमिस्ट्री का टीचर बन जाता। अचानक दीनी तौर पे देखते हैं ये बच्चे जो है नेट पर आकर फतवे भी देना शुरू कर देते हैं। इनकी कोई बेसिक तालीम नहीं है, कोई बेसिक तरबियत नहीं है, तो दीन एक खिलवाड़ बन के रह जाता आखिर में। फिर उसके बाद दीन, बच्चे जब ये हाथ से निकल जाते, यूरोप अमेरिका चले जाते हैं, वहां जाकर बच्चे जो माँ बाप को भूल जाते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, तो ये माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। तो ये पूरा चीज हमें क्या बता रहा है कि हम इल्मो अमल की बुनियाद पर कहाँ ठहरे, जबकि साहबा कराम देखिए रात दिन तैयार के, तो ताबईन में कौन निकले? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह निकले, सईद इब्नुल मुसैब रहमतुल्लाह अलैह निकले, इमाम जोहरी रहमतुल्लाह अलैह निकले, अबू बकर बिन हजम रहमतुल्लाह अलैह,
जिन्होंने हदीसों को जमा किया, जिन्होंने फतह के झंडे पूरी दुनिया में गाड़ दिए। फिर का तबे ताबईन निकले, तबे ताबईन के बाद मुहद्दिसीन, अइम्मे अरबा, बड़े बड़े चार इमाम, फिक्ह के इमाम, छह हदीस के इमाम, तफसीर के इमाम, सीरत के इमाम। ये ऐसे एक रात में निकल के नहीं आए, इसके पीछे तकरीबन तीन खैरुल कुरून का जमाना, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, लगभग 200 साल के बाद, यानी लगभग 190 साल के बाद का जमाना है ये मुहद्दिसीन का। ये मुहद्दिसीन ऐसे ही नहीं निकल गए। वो 80 साल के बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, ये फिक्ह के इमाम ऐसे नहीं निकल गए, ये हदीस के इमाम, फिर तफसीर में इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह। ये कैसा होता है? उसके लिए 100 साल ने, 200 साल सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन ने मुसलसल इल्म व अमल, इल्म व अमल, रात दिन उन्होंने पढ़ा। तो अब कोसा टाइम आप कहेंगे शेख हमको तो पढ़ना है आज के दौर में, अगर नहीं पढ़ेंगे, पढ़िए भाई। 9 बजे से लेकर मगरिब तक पढ़ ही रहे ना, तो जल्दी सो जाइए, 9:30 को सो जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करिए। अगर रात में 12 बजे सोएंगे आप, ड्रामे देखकर, धारावाहिक देखकर, गाने सुनकर, वो फिल्म के अवार्ड देखकर, आपको बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे भी नहीं सोते फिर। अगर उठ जिसको कहते हैं स्लीपिंग और वेकअप टाइमिंग अगर क्लियर नहीं है, तो फिर बच्चों का डिसिप्लिन तो गया ना। आप 9:30 को अगर सो जाए, 10 बजे सो जाए, फिर रात भर नींद ले, 4:30 बजे उठ जाए, फजर से पहले 1 घंटा, वहां पर एक आधा घंटा भी 15 मिनट इबादत करे, फिर एक 15 मिनट आप कुरान में का तर्जमा पढ़े, और तफसीर अहसनुल बयान, उलमा ने क्या कहा इसकी तफसीर में, जरा पढ़ ले एक सफा, खतरा खतरा। फिर उसके बाद फजर के बाद अज़कार करे, फिर एक आधा घंटा सही बुखारी पढ़े आप। तो अगर इसको कहते हैं मी टाइम, आपका मी टाइम जबरदस्त, उसके अंदर प्लानिंग भी करिए आप, एक आधा घंटा प्लान, प्लान ऑफ द डे। आज के दौर, आज के वक्त में मुझे अहम अहम काम क्या करना है, पढ़ाई में क्या करना है, अमल में क्या करना है, बिजनेस में क्या करना है, घर के फैमिली क्या है, कॉलम बनाइए, लिख लीजिए। आपका व्हाट्सएप का जमाना है तो कॉमन ग्रुप बना लीजिए, फैमिली ग्रुप, इल्मी ग्रुप, और एक शेख को भी लगा लीजिए साथ में। क्यों? क्योंकि एक दिन सोएंगे, 2 दिन, 3 दिन, अब शेख आपको देख रहे हैं, आपके तुम्हारे शेख नोट कर रहे हैं, शेख नोट कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल एक अपने ऊपर एक निगरान भी बन जाएगा खुद ब खुद। अपने ऊपर एक तारी कर लीजिए, किसी को निगरान बना लीजिए, अकेले अगर है तो, क्यों शैतान एक के साथ होता है, दो के साथ भागता है। तो आप शेख को कहिए कि भाई शेख सुबह के टाइम पर हमको उठाइए, और इस उठाने के भी आपको पैसे, ट्यूशन के भी पैसे, शेख हमको उठाकर ये दुआएं भी पढ़ाइए, ये किताब भी पढ़ाइए। अब इल्मुल मुस्तमिर में जो मैं सुना हूं कि कुतुब सित्ता पढ़ाने का आजम किया, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है कि आज के दौर में कुतुब सित्ता पढ़ाने के लिए आपके लिए मेहनत करें। हदीस, यानी कुरान मजीद के दर्स तो हमें प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, लेकिन हदीस के प्लेटफॉर्म आना शुरू हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो ये सुबह का टाइम, अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या गलती होती है। देखिए अक्सर क्या होता है, हम जब तक कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज के डर से पढ़ लेते, स्कूल में होते तो स्कूल में माँ बाप के डर से या टीचरों के डर से पढ़ लेते। लेकिन जैसे कॉलेज खत्म हो जाता, जब जॉब लगता ना, तो हम जो है आवारा हो जाते। आवारा मतलब नो डिसिप्लिन। एक अमेरिका में खातून है, उनका इंटरव्यू मैं यूट्यूब पर देख रहा था, तो मैं उनकी बातें कोई सुन रहे थे तो मैं वो सुन रहा था। मुझे मेरे कान में आवाज, मैंने कहा अरे बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही है खातून, कौन है क्या है। तो बताया कि भाई ये खातून है, इसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्या है इसकी अहमियत, क्या है, क्या आखिर वजह क्या है, देखने में तो घरेलू खवातीन खातून दिख रही है। तो कहा ये अमेरिका का एक खातून है, इसके 6 या 7 बच्चे अमेरिका में, नॉन मुस्लिम, यूरोप की होगी जो उधर आकर रह गई है अमेरिका में। तो 6 या 7 बच्चे हैं। तो लोग उनसे इंटरव्यू के ले रहे हैं भाई, 6, और साथ में जॉब को भी जाती है वो खातून। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली स्किल्स भी डेवलप कर रही है, बच्चे भी पाल रही है। तो सब लोगों ने पूछ लिया, आखिर इंटरव्यू ले लिया कि ये कैसे पॉसिबल है कि अमेरिका में रहते खातून इतने बच्चे भी पाले, जॉब भी करे, और वो बच्चे इतने डिसिप्लिन है कि गिलास जहाँ रखना है वहीं रख रहे हैं, जहाँ प्लेट रखना है वहीं रख रहे हैं, और घर में गंदगी नहीं डाल रहे। वो बच्चे भी इतने डिसिप्लिन कैसे हो गए? तो उस औरत ने काम की बात कही, उसने क्या कहा कि देखो जब हम स्कूल में थे
तो उस वक्त पर हम एक दिन में आठ आठ, छः छः या आठ आठ सब्जेक्ट पढ़ते थे। 30 मिनट, आप भी जब स्कूल में थे तो याद होगा आपको। 30 मिनट केमिस्ट्री, 40 मिनट बायोलॉजी, 40 मिनट उर्दू, 40 मिनट इंग्लिश। यानी आपने कैसे टाइम बांटा था कि 8 से लेकर 4 बजे तक आप स्कूल में थे और आपका टाइम बटा हुआ था। और वो खतरा खतरा खतरा, आपको एक दिन डिग्री मिल गई, एक दिन आप एसएससी, डिग्री, मास्टर, पीएचडी तक पहुंच गए। लेकिन जैसे आपके लाइफ से टाइम टेबल चला गया, आपके पास कोई टाइम टेबल ही नहीं है अब। जब चाहे उठ रहे हैं, उठकर जो है जॉब को चले जा रहे हैं, बिजनेस को चले जा रहे हैं। और मैं हम बोल रहे हैं, उलमा बोल रहे हैं कि भाई कुरान के तो निकालेंगे शेख, बहुत टेंशन है, आपको नहीं मालूम। पहले क्या है, पेट में दाना रहा ना तो अल्लाह बोल के आवाज अच्छी आती करते। एक साहब बोल रहे हैं मुझे, एक साहब क्या बोल रहे हैं मालूम, पेट में दाना पड़ा तो अल्लाह भी अच्छा निकलता ना। अच्छा, इसलिए मैं अल्लाह अच्छा निकालने के लिए पहले पेट में दाना डालने के लिए बहुत मेहनत करना है। अरे मेरे भाई, वो जो बहुत मेहनत कर रहे हैं ना तुम, तुम्हारी मेहनत में कमी आ जा सकती है, और अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की तरफ से रहमतें तुम्हारे लिए मदद शामिल हो जाए तो तुम ये अल्लाह पहले निकालो। हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, पहले सलाह पढ़ोगे तो फलाह मिलेगी। बंदा उल्टा कर दिया, बंदा क्या करा, पहले फलाह मिली तो मैं सलाह पढ़ूंगा। शेख, पहले मैं अच्छा कमाया तो नमाज अच्छा पढ़ूंगा ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं 50 साल के बाद हज करता हूँ ना, हज के बाद पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा, उससे पहले नमाज सब नहीं, माफ है। कौन बोले, कौन बोले, बोलता हमारे मामू बोले। अब मामू नबी है आपके, हमारे चिच्चा बोले, हमारे फुप्पू बोले। तुम्हारे फुप्पू, तुम्हारे मामू, सबको अल्लाह ताला जहन्नम में फेंक दिए, तो क्या तुमको बचाने आएंगे या तुम उनको बचाओगे? कुरान और हदीस के बाद इनकी उनके थ्योरीज पर क्यों चलते हैं? हमको जो है अल्लाह ताला एक एक नेमत के बारे में पूछेंगे। आपको ज्यादा नहीं करना है, आप 10 मिनट भी निकालिए। देखिए, मैं अपना वाकया बताता हूँ कि मैं कैसा जो है अपने आप को, अब इसमें लिखा, पोस्टर पे लिखा हुआ है कि शेख के एक्सपीरियंस से फायदा उठाओ। हो सकता है आपको मेरा एक्सपीरियंस काम आ जाए। मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, 6 बजने आ रहे हैं। तो 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जो है, अगर आपको कुछ सवालात है तो 15 मिनट ब्रेक के बाद जो है नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। 15 मिनट में ब्रेक लूंगा मगरिब की नमाज के लिए। तो अभी मैं आपके सामने 5 मिनट में बताऊंगा। मुझे याद है उमराबाद में जो है ना, मैंने ऐसा टाइम बाट मैं ऐसा टाइम लिखता था कि 6 साल मुझे यहाँ रहना है या 8 साल मुझे रहना है। तो अगर मैं 10 मिनट, 11 बजे जो है ना, छोटा सा ब्रेक मिलता था, तो कोई जो है खाने चले गया, कोई टहलने चले गया, लेकिन मैं बोलता था मैं क्यों टहलने जाऊं, क्यों खाने जाऊं, अभी तो थोड़ी देर पहले खाया ना। तो ऐसा करता हूं कि ये 11 से लेकर 11:15 तक जो ब्रेक है ना, तो इसके अंदर 5 मिनट अगर मैं चाय या पानी पी लो, 10 मिनट, ये 10 मिनट को अगर मैं 6 साल तक ये 10 मिनट यूटिलाइज किया, तो कितना मुझे फायदा होगा। मैं आज ही हिसाब कर रहा था कि अगर साल में जो 365 में से मान लो 300 दिन भी अगर मैंने इसकी पाबंदी की, तो 300 को 10 से अगर आप जो है 10 मिनट करेंगे तो 3000 मिनट हो गए। और 6 साल में आप देखिए, आप अ, कितना चलेगा, 18,000 मिनट। फिर उसको आप डिवाइड करेंगे, तो फिर अगर आप उसको एक एक घंटे के हिसाब से 60 से डिवाइड करेंगे, तो आखिर में कितने घंटे हो जाते हैं? बहुत सारे घंटे। तो अगर आप मान लीजिए 300 घंटे, तो 300 घंटे, अगर 10 घंटे में एक बुक पढ़ रहे हैं, तो 30 घंटे में आप लगभग जो है 300 घंटे में लगभग माशाल्लाह आप जो है 30 बुक पढ़ ले सकते हैं आप। ठीक है। तो अगर आप 30 बुक पढ़ ले सक रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट की मैं बरकत बता रहा हूं, अगर आप 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट का आप सही इस्तेमाल करें 6 साल तक, तो कम से कम आप ये 6 साल में 30 बुक्स को आप एक बुक को 10-10 घंटे भी अगर आप लगाएं, तो 30 बुक 10 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। तो 30 बुक में कितना इल्म आ जाता है। मान लीजिए फिक्ह के एक बुक खत्म की आपने, हदीस की एक बुक खत्म की, बुलुगुल मराम आपने खत्म कर दी, इधर फिक्ह में जो है एक किताब आपने खत्म कर दी, फिक्हुल हदीस या इकबाल केलानी का सेट खत्म कर दिया आपने, या मेरी किताब किताबुत तहारा, किताबुस सलाह, किताबुस सौम, किताबुल ज़कात, किताबुल हज, मेरी जो सीरीज है abmqurannotes.com, www.abmqurannotes.com में फ्री में अवेलेबल है, रोमन में है, इंग्लिश में है, उर्दू में, डाउनलोड करके पढ़िए अगर आप।
तो 30 किताबों में कितना इल्म अकीदे के उलूमुल अकीदा एक किताब है, उलूमुल हदीस एक किताब है, एक एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा ना। 10 मिनट अगर आप देंगे, आप कितना बिजी भी हो जाए 10 मिनट तो निकाल सकते हैं आप। खतरा खतरा दरिया। तो मैं ऐसा करके जो टाइम बांटता था, माशाल्लाह मैंने वहां पर एक छोटी लाइब्रेरी थी, उसको मैंने खत्म कर दिया। असर के टाइम पे एक दूसरी लाइब्रेरी थी हॉस्टल में, तो फिर मैं वहां पर एक आधा घंटा देता था। ऐसा आधा घंटा मैं 6 साल में हिसाब लगाया। तो असर के टाइम को यूज करके मैंने हॉस्टल की लाइब्रेरी खत्म की। और मैंने 11:15 के पास जो 10 मिनट मिलते थे ना, तो वहां पर एक छोटी लाइब्रेरी थी, उसको मैंने खत्म किया। और असर के बाद 1 घंटा भी देता था मैं, यानी अपना टाइम। देखिए कोसा टाइम आपका मी टाइम होता है। मी टाइम माने में आपका अपना टाइम जिसके अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। वैसे 10 मिनट 15 मिनट निकाली। और एक कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए वीकेंड में, तो उससे भी आदमी बाना रहता है। और खुद का भी एक टाइम निकालिए जहां पर किसी एक आलिमा को आप ट्यूशन पर लगा लीजिए। उसका फायदा क्या होता, अगर आप नहीं उठे नींद में से तो आपको गिल्टी आएगा, और आप एम्बैरस होते, बेचैन होते, अरे मैं किसी की नजर में आ रही हूँ, कोई आलिमा नोट कर रही है कि आज नहीं उठे दोस्त जी, नहीं उठी, फिर आज भी नहीं उठे, 3 4 दिन के बाद आपको आदत पड़ ही जाएगी। तो आर्टिफिशियली कुछ टेंशन क्रिएट करिए, तब जाके डिसिप्लिन आएगा। क्योंकि कोई आपको स्कूल में थे कॉलेज में थे तो वहाँ हेडमास्टर थे, वार्डन था, टीचर थे, प्रिंसिपल थे। यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो खुद को आपको पावरफुल करना है। और आप ना बने तो कम से कम किसी को मुकर्रर कर लेना, पे करना। जब खुद से नहीं कर सक रहे फ्री में डिसिप्लिन, तो पे करके डिसिप्लिन करना। वो क्या है, किसी टीचर को मुकर्रर कर लेना कि भाई इतनी किताबें खत्म होती, वो लाइब्रेरी में इतनी। फिर बड़ी लाइब्रेरी जाएंगे जो ग्राउंड के पास, जो मदरसे के जरा बाहर में है बड़ी लाइब्रेरी, और फिर वहां से फिर मैदान की तरफ जाते हैं। तो 1 घंटा अगर मैं पढ़ूंगा तो बड़ी लाइब्रेरी में इतनी किताबें खत्म हो सकती। फिर उसके बाद जब जाते थे खेल में, तो फुटबॉल मैं देखता था कि बहुत देर तक बॉल नहीं आ रहा है। जब तक क्या करेंगे, खाली ठहरेंगे क्या? तो अब क्या करेंगे, तो एक पेपर, छोटा सा एक पेपर, एक पेपर को अलग अलग लंबाई में काट लेता था, और एक 10 अरबिक वर्ड लिखकर जेब में डाल लेता था। और मैं वो वर्ड को जो है ना खेल के दौरान भी याद करता। तो वहां पर भी 10 10 वर्ड अगर मैं याद किया 6 साल 8 साल, तो एक कोर्स जो होता है मदरसे का, जो 8 साल का कोर्स है, मदीने में 4 साल है, 12 साल। अगर ये 12 साल का आपके पास एक प्लान रहे, तो आप कितना पढ़ सकते। फिर उसके बाद कॉलेज भी हो गया। और आज भी जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाता हूं मैं। जैसे 4 घंटे तफसीर लिखता हूँ, 2 घंटे हदीस, और 2 घंटे फिक्र, यानी 8 घंटे दिन में लिखने के लिए मैंने अपने आप को ऑफ किया है। फिर वीकेंड आता है तो बयानात के लिए अपने आप को। तो उसमें इल्म बढ़ते रहता है, इल्म बढ़ते रहता है। फिर मैंने क्या किया साथ में जो है ना, कि भाई गम ने देर भी हो क्यों ना, पीएचडी करते रहना चाहिए। तो 11 साल ने 2011 में शुरू किया, 2023 में पीएचडी खत्म हुआ। यानी कि इतना मसरूफ टीवी चैनल्स पर बयानात प्रिपेयर करना होता है, बयानात करना होता है, दूर दूर सफर करना होता है। तो रात की दर दिन की दर, एक एक हफ्ते तक जो है घर से दूर, घर से जब आप दूर होते हैं तो सूटकेस में ही आपकी जिंदगी होती है। घर के अंदर तो हर चीज आपकी इतर के लिए अलग जगह होती है, सोने के, लेकिन सफर में सिर्फ सूटकेस में ही सब कुछ होता है। तो आदमी एक हफ्ते के अंदर उसका पूरा डिसिप्लिन आउट हो जाता है, उसकी पढ़ाई पूरी आउट हो जाती है। तो वो होते हुए भी साइड में पीएचडी कैसे कर ले, एक प्लान बनाना पड़ेगा आपको, एक टाइम मैनेजमेंट। इसलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट पे एक बुक लिखी है, उसको भी डाउनलोड करके पढ़िए। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए कि दिन को 8 हिस्सों में बांट लिया करते थे। जब हम सीरत पढ़ते हैं तो ऐसा क्लोजली आप गौर करें तो ऐसा लगता है 8 घंटे में आपने बांटा। तहज्जुद से लेकर लेकर फजर तक रोजाना ये अमल हो रहा है। फिर फजर के बाद सहाबा के ख्वाब सुनते थे, रोजाना अमल हो रहा है। असर के वक्त पर अपने बीवियों से मुलाकात, अगर बिजी हो जाते तो इशा के बाद मिलते, या इशा से पहले, मगरिब से इशा के दरमियान में। यानी बीवियों से मिलने का भी टाइम है। हमारे पास बाद लोग बोलते हैं हम इतने बिजी है कि बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं है। इतना क्या बिजी है? अभी आप जंगे बदर कर रहे हैं, जंगे ओहद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? वो छोटे, हर कोई अपने अपने काम को बहुत बड़ा समझ रहा है आजकल। भाई तुमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मालूम, वही उतर रही है।
ادھر جو ہے کاتبین نے وہی 40 کاتبین نے وہی رات دن کتابیں، رات دن قرآن مجید لکھ رہے ہیں۔ اس کا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ٹائم دینا ہے، ادھر سے وفد آ رہے ہیں ان کو کلمہ پڑھانا ہے، ادھر سے جو ہے نا جنگوں کی خبریں آ رہی تو اس کی تیاری کرنا ہے، اس کے لیے تلواریں تیار کرنا، اس کے لیے زرے بنانا ہے، اس کے لیے جو گھوڑے تیار رکھنا ہے، گھوڑوں کو نہلانا پڑتا ہے، کھجوریں اتار کر جو ہے اس وہ دینا پڑتا ہے اپنے گھر والوں کو، پانی کنویں میں سے نکالنا پڑتا ہے، پتے نکال کے جو ہے نا اس کی چھال، اس کی چھتیں بنانا پڑتا ہے گھر کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو بھی ساتھ دیتے تھے۔ اپنے چپل اگر خراب ہو گئے تو اس کو سی لیا، کپڑے اگر خراب ہے تو اس کو پیون لگا لیے، اگر اپنا تکیا جو اس کے اندر جو ہے پتے بھرے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھ رہے ہیں تو گالے مبارک پر پتوں کے نشان ہیں۔ یعنی محنت محنت، اور جو ہے گرمی، سردی، بارش، موسم، خوف، امن، لیکن ڈسپلن یہ ہے کہ عصر کے ٹائم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، نماز کا ٹائم یہ تھا، پڑھنے کا ٹائم یہ تھا، لوگوں سے ملنے کا ٹائم یہ تھا، ملاقاتوں کا ٹائم تھا۔ کیسا ڈسپلین ٹائم! خطرہ اس لیے تھوڑا تھوڑا ٹائم بھی اگر آپ بانٹیں گے تو خطرہ خطرہ دریا بنتا ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا ٹائم مینجمنٹ کیجئے، اور می ٹائم رکھیے، اور می ٹائم میں 3 چیزیں ضرور ہے: قرآن، سنت یہ پڑھیے، یعنی صحیح قرآن اور صحیح کتب حدیث پڑھیے، اور فقہی کتابیں، مسائل، عقیدی کتابیں سب پڑھنے کا ایک ٹائم رکھیے، کتابوں کا ٹائم، علم حاصل کرنے کا ایک ٹائم۔ دوسرا، پلان بنائیے آنے والے 5 سال کا، ویک کا، مہینے کا، پورا پلان بنائیے انشاءاللہ۔ اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔